Now I have the honor of inviting someone with whose sankalp all of us from different walks of life, from government, from academia, from industry, we have come together here. So let's join hands in welcoming our own Dr. Vikrant Tomar. Dr. Tomar, over to you. Our next speaker is a versatile personality. He is an acknowledged trainer, academician, scholar, writer, and a management consultant. He has done his doctorate in business management and master's in philosophy. He is a national merit holder in electronics enabled training from Indian Society of Training and Development, New Delhi. He is Dr. Vikrant Singh Tomar. Dr. Tomar is a freelance trainer and served the cabinet ministers of state, MLAs, police officers, and tycoons of business world. He has authored the book Rule the World as Krishna Did. He addressed first World Spiritual Parliament Hyderabad, International Conference on Innovative Business Management as a keynote speaker, and his thoughts on the impact of Indian philosophy on modern management were also appreciated at Philosophy of Management Conference, Oxford, London, International Conference on Enterprise System and Best Management Practices organized by Global Digital Business Society, USA. He is on a mission of happiness here and now. The aim and objective is universal brotherhood and happiness through harmonizing the knowledge from ancient scriptures into our lives. His message throughout has long been that you can think of happiness or even catch happiness for a while, but you can never buy happiness. Many have found themselves spiritually elevated because of his teachings on Bhagavad Gita, Vedanta, etc. So without further ado, it's my pleasure to welcome Dr. Vikrant Singh Tomar. Namaste, everybody. Would like to present a model of seva through a mantra of shloka of Bhagavad Gita, last verse. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुद्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम। एक एक शब्द सेवा के भाव का इंस्पिरेशन है। पहला योगेश्वर। योगेश्वर शब्द योग का अर्थ है मन वचन कर्म से एक होना। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, नमः ते, मैं झुकता हूँ तेरे लिए, जब हम नमस्ते करते हैं तो हमारा अंगूठा हमारे हृदय की तरफ होता है, उंगलियां हमारे मस्तक की तरफ होती हैं और हमारे हाथ भी। It means I bow down to you with all my heart and feelings, all my head and cognition, and all my hands and action. So सेवा में ये तीनों चीज़ें जब अलाइंड होती हैं तो उसी को योग कहते हैं। वही मैं सोचूं, वही मैं करूं और वही मैं बोलूं, अपने आप योग प्रस्तावित होता है। यत्र योगेश्वर। दूसरा शब्द इसमें आता है कृष्ण। कृष्ण एक भाव है, सुदर्शन है, एक दर्शन है। सुदर्शन ही कृष्ण है। महाभारत का एक छोटा सा इंसिडेंट हमें याद दिलाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव पांडव सब खत्म हो गए, तो युधिष्ठिर को ले जाया गया नर्क। युधिष्ठिर जब नर्क पहुंचे तो वहां देखा कि चारों पांडव नर्क में हैं। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बोला अगर मेरे भाई नर्क में रहेंगे तो मैं भी नर्क में ही रहूंगा। चित्रगुप्त ने बोला कि नहीं, तुम्हारे भाइयों का जीवन देखो, बहुत अच्छे उन्होंने सेवा कार्य किए हैं, पर बीच में कुछ गड़बड़ कर भी देते थे वो लोग। कई बार उनके रास्ते ठीक भी नहीं होते थे। उनके गुड डीड्स बहुत ज़्यादा हैं, बैड डीड्स बहुत कम हैं, इसीलिए हम शुरू में उन्हें स्वर्ग में, नर्क में रखेंगे ताकि उनकी बैड डीड्स एग्जॉस्ट हो जाएं। परमानेंट स्वर्ग में शिफ्ट करने की तैयारी है उनके गुड डीड्स के फल पे। जैसे तैसे शांत खुद को करके वो स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग में दुर्योधन बैठ के अंगूर खा रहे हैं। तो युधिष्ठिर सेड कि क्या स्वर्ग भी धरती की तरह हो गया? पांडव नर्क में हैं और दुर्योधन स्वर्ग के अंगूर खा रहे हैं। चित्रगुप्त ने बोला यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कौरवों का जीवन देखो, माना बहुत गलत काम किए पर बीच बीच में कुछ सेवा वो भी कर देते थे। चूंकि उनके अच्छे कर्म बहुत कम थे, बुरे कर्म ज़्यादा थे, तो इन ऑर्डर टू एग्जॉस्ट देयर अच्छा कर्म, पहले हम उन्हें स्वर्ग में रखेंगे। परमानेंट नर्क की तैयारी है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो गलत रास्ते से आगे बढ़ते हैं, तब परमात्मा उन्हें तात्कालिक स्वर्ग दिखाता है पर परमानेंट नर्क बुक हो जाता है। पर जब हम सेवा के रास्ते पे चलते हैं तो हो सकता है हमें तात्कालिक परेशानियां आएं, ये तात्कालिक नर्क हो सकता है, पर परमानेंट स्वर्ग जो आत्मिक शांति है, रात को नींद चैन की आती है और दिन में दिल प्रसन्न रहता है। ये दूसरी चीज कृष्ण, ये भाव सेवा से जागृत होता है। तीसरा पार्थ। पार्थ शब्द का अर्थ है पेशेंस।
जब भी हम सेवा करें, इतने बड़े बड़े रोल मॉडल्स हमारे सामने उपस्थित हैं जिन्होंने अथक ईयर्स तक पेशेंस रखा और आज उसका फल सारी समाज तक पहुंचता है। पेशेंस, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पे गया, चॉकलेट की बरनी को खोल के दुकानदार ने बोला जितनी चॉकलेट चाहिए ले लो, मुट्ठी भर के ले लो। छोटा सा बच्चा हाथ बांध के खड़ा रहा, उसने बोला अंकल नहीं चाहिए। इतना प्रभावित हुआ दुकानदार, उसने खुद ने कहा बेटा मुट्ठी भर के ले लो, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। बच्चे ने बोला अंकल नहीं चाहिए। दुकानदार ने फिर से माँ को देख के कहा बेटा मम्मी नहीं डांटेंगी, मुट्ठी भर के ले लो। बच्चे ने फिर से कहा अंकल नहीं चाहिए। जब 3 बार उसने ऐसा कहा, दुकानदार इतना प्रेरित हुआ, उसने खुद ने मुट्ठी भर के चॉकलेट बच्चे की तरफ बढ़ाई। जैसे दुकानदार ने मुट्ठी भर के चॉकलेट बच्चे की तरफ बढ़ाई, कुछ अचंबा सा हुआ। बच्चा जो हाथ बांध के खड़ा था, उसने दोनों हाथ खोले, सारी चॉकलेट लेके जेबों में भर के खड़ा हो गया। इतनी जल्दी उसने किया कि उसके धैर्य को क्या हुआ, उसकी माँ चकित रह गई, दुकानदार तो सुपर चकित था। क्या हुआ, जब माँ और बच्चे वहाँ से गए, ने माँ ने बच्चे के सर पे एक लगाया, तुम इतने अच्छे बच्चे थे, दुकानदार ने तुमसे 3-3 बार बोला अपने हाथ से मुट्ठी भर के ले लो, तुमने मना कर दिया। फिर जब उन्होंने अपने हाथ से दी तो क्यों ले लिया? छोटा सा बच्चा मासूमियत में माँ को बोला कि माँ जब मैं आपके साथ दुकान पे गया था तो मैं पहले से ही सोच के गया था कि अगर अंकल बोलेंगे अपने हाथ से ले लो, मुट्ठी भर के ले लो, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं, थोड़ी सी आएगी। मैं चाहता था कि मैं अंकल के सामने धैर्य का प्रदर्शन करूं ताकि मेरे सत्कर्मों से प्रसन्न हो के वो अपने बड़े हाथों से दे। छोटे से बच्चे ने बोला माँ क्योंकि मैं जानता हूं जब वो अपने बड़े हाथों से देता है तो इतना मिलता है कि सारी जेबें भर जाती हैं, कभी कमी नहीं पड़ती। तो ये तीसरा भाव सेवा का होता है कि हम अपने पुरुषार्थ करें ताकि वो अपने बड़े हाथों से हमें दे। चौथा और अंतिम शब्द है धनुर्धर। धनुर्धर का मतलब होता है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट। विचारों की सेवा तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, पर क्या हम उनको क्रियान्वित कर पाते हैं? विचार तो बहुत सारों के पास अच्छे होते हैं, क्रियान्वित। काशी के मल्लाह की वो कहानी हमने सबने सुनी है। वो मल्लाह गंगा में इधर से उधर रोज बोट ले जाता था, 3 ब्राह्मण उसमें चले। जैसे ब्राह्मण चले और बोट आगे चली, एक ब्राह्मण ने मल्लाह से पूछा कि तुम्हें गीता आती है? मल्लाह ने बोला मुझे गीता नहीं आती। तो उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को देख के बोला यार इसका तो 25% जीवन बर्बाद हो गया। ये सुन के मल्लाह ने बोला अच्छा भाई साहब हमें तो पता ही नहीं पड़ा। फिर दूसरे ब्राह्मण ने पूछा अच्छा तुमने उपनिषद तो थोड़े बहुत पढ़े होंगे? उसने बोला नहीं मैंने उपनिषद का नाम भी नहीं सुना। दूसरे ब्राह्मण ने बोला इसका तो 50% जीवन बर्बाद हो गया। मल्लाह ने बोला अच्छा हमें तो समझ में ही नहीं आया। तीसरे ब्राह्मण ने फिर से पूछा अच्छा तुमने रामचरितमानस तो जरूर पढ़ी होगी घर में? उसने बोला नहीं हमारे घर में रामचरितमानस भी नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूँ। तीसरे ब्राह्मण ने बोला इसका तो 75% जीवन बर्बाद ही हो गया, इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अचानक गंगा की एक मौज आई, लहर तेज आई, बोट उछल के पलट गई और जैसे बोट पलटी तीनों ब्राह्मण नदी में थे, गंगा में थे, डूबने लगे। डूबते डूबते जब वो डूब रहे थे मल्लाह ने पूछा महाराज तैरना आता है? तीनों ने बोला नहीं। तो उसने बोला महाराज माफ करना पर अब आपका 100% जीवन बर्बाद हो चुका है। तो ये 4 नगीने जो सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण यही अपनी गीता का समापन करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। योगेश्वर हमें बताता है कि हमें किस भाव से सेवा करनी चाहिए, मन वचन कर्म से एक होकर। कृष्ण हमें बताते हैं हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए और कैसे चींटी के पांव घुंघरू बजते हैं तो साहब सुनता है। हमारे हर एफर्ट गेट्स काउंटेड एंड देयर आर नो लॉज ऑफ एवरेज इन स्पिरिचुअलिटी। अच्छे काम का पुरस्कार अलग है, गलत काम का पनिशमेंट अलग है, and they both coexist. Third is पार्थ। धैर्य के साथ हम अपने सेवा कार्य करें ताकि वो अपने बड़े हाथों से दे, और जब वो बड़े हाथों से देता है तो बच्चे IIT IIM में पढ़ते हैं, पति पत्नी में संबंध अच्छे होते हैं, रिश्ते खूबसूरत होते हैं, दिन में मन शांत रहता है, रात को नींद चैन की आती है। धनुर्धर का अर्थ होता है क्रियान्वयन करना, जो निर्णय लिया फिर उसको जीना, यही जीवन है। थैंक यू वेरी मच। On the behalf of United Council for Ancient Wisdom and United Global Peace Foundation, I thank Dr. Vikrant Singh Tomar for coming and sharing his views.